નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના ખાસ કાર્યક્રમ કરંટ અફેર્સમાં હું જયેશ સોની આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ધ કેરાલા સ્ટોરીની। આ એક એવી ફિલ્મ છે કે જેણે પૂરા દેશની અંદર ચર્ચાનો વિષય બની ચૂકી છે। કેટલાક રાજ્યોની અંદર એના ઉપર પ્રતિબંધ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે, તો કેટલાક રાજ્યોમાં એને ટેક્સ ફ્રી કરવામાં આવી છે। પરંતુ ગુજરાતની અગર વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર આ ફિલ્મને કોઈક અલગ જ રીતે સમર્થન મળી રહ્યું છે। સમગ્ર રાજ્યની અંદર અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા આ ફિલ્મને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મહિલાઓને નિહાળવા માટેની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી રહી છે અને એ પહેલા દિવસથી લઈને આજે પણ અવિરત ચાલુ છે। મહિલાઓ આ ફિલ્મ જુએ અને ખાસ કરીને જાગૃત થાય એ માટેના પ્રયાસો છે। આ વિશેનો એક અમારો વિશેષ અહેવાલ પહેલા જોઈ લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે કેટલાક વિશિષ્ટ મહિલાઓ સાથે ચર્ચા કરીશું। વાસ્તવિકતા ચિત્ર અને જેહાદી ષડયંત્રના ભોગ બનનાર મહિલાઓ જીવન પર બનેલ ધ કેરાલા સ્ટોરી મૂવી હાલ સમગ્ર દેશમાં ખૂબ ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે અને આ મૂવી જોવા માટે કેટલાક હિન્દુ સંગઠનો હિન્દુ પરિવારોને અપીલ પણ કરી રહ્યા છે અને હિન્દુ સંગઠનો રાજ્યના ઠેર ઠેર વિનામૂલ્યે મૂવી બતાવવાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે ગતરોજ વ્યારા ખાતે હિન્દુ યુવા આગેવાન જિગ્નેશ ગડારિયા સહિત તેમની ટીમ દ્વારા વ્યારા ખાતે આવેલા રાધે મલ્ટીપ્લેક્સ સિનેમા ખાતે વિનામૂલ્યે 400 જેટલી બહેનોને ધ કેરાલા મૂવી બતાવી જાગૃત કરવામાં આવી હતી અને મૂવી જોનાર મહિલાઓ આવી જેહાદી ષડયંત્રમાં ન ફસાય અને હવે સાવધાન રહે તેવી અપીલ પણ કરવામાં આવી હતી। ધ કેરાલા પિક્ચર જોયું તો મને બહેનો દીકરી માટે મને સંદેશો આપો છે કે બહેનો અને દીકરીઓ બધી વિશે પોતે કેવી રીતે સેફ રહેવું જોઈએ, કઈ રીતે બધી જાતની માહિતી એમને એજ્યુકેશનથી માંડીને અને જે એમને પોતાનો સ્વ બચાવ કેવી રીતના કરવો અને એની એજ્યુકેશનમાંથી અને આ પિક્ચરમાંથી એટલો બધો સંદેશો મળે છે કે દીકરીઓને ખાસ જોવા જેવું જ છે। માઇન્ડ બ્લોઈંગ મૂવી છે આ મૂવી। બધા દેશોમાંથી લઈને બધા ઘરોમાં આ મૂવી બતાવવી જોઈએ જેથી છોકરીઓને ખબર પડે કે આજે કેરેલા ક્યાં છે અને આપણે ક્યાં છે ને બધી જ બહેનોએ આ મૂવી જોવી જોઈએ, ફરજિયાત જોવી જોઈએ। જેહાદી ષડયંત્ર દ્વારા કેરળાની જેમ દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ લવ જેહાદ અને લેન્ડ જેહાદ ખૂબ જ સુનિયોજિત રીતે ચાલી રહ્યું છે। હાલમાં યોજાયેલા કર્ણાટક વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ કોંગ્રેસની જીત બાદ પાકિસ્તાન જિંદાબાદના નારા લાગ્યા હતા અને પાકિસ્તાની ધ્વજ ઊંચાઈ પર ચડીને ફરકાવવામાં આવ્યો હોવાના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યા છે। ત્યારે હવે ગુજરાતમાં આવી ઘટનાનું પુનરાવર્તન ન થાય એ માટે હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા આ પ્રકારના જનજાગૃતિ અભિયાનો ચલાવાઈ રહ્યા છે અને આ સમગ્ર દેશમાં આવી જાગૃતિ લાવવા માટે મુહિમ ચલાવવાની તૈયારી પણ કરવામાં આવી રહી છે। તો આપણે જે આ અહેવાલ જોયો છે એ આ એક તાપી એરિયામાં થયેલા આયોજનનો જોયો છે, પરંતુ આ જ પ્રકારે સમગ્ર રાજ્યના અલગ અલગ જગ્યાઓ પર આ જ પ્રકારના જે આયોજનો છે એ થઈ રહ્યા છે। આપણી સાથે आज विषय ऊपर चर्चा करवा माटे डॉक्टर वंदना शर्मा दिया जो कि रिसर्च साइंटिस्ट है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कविताबेन दुबे उपाध्यक्ष है वीएचपी लिंबायत प्रभाग के जो दोनों हमारे साथ आज इसी मामले पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वंदना जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से द केरला स्टोरी का स्क्रीनिंग हो रहा है और इससे जिस प्रकार से जो महिलाओं के अंदर जागृति लाने का प्रयास हो रहा है, इतना आवश्यक है ये, कितना आवश्यक है ये? आपके तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है किसी तकनीकी खराबी के कारण उनकी आवाज नहीं आ रही है। हम कविता जी से बात करते हैं। कविता जी, आप बताइए कितना आवश्यक है ये जो पूरा
जो ये स्क्रीनिंग का जो प्रोग्राम हो रहा है गुजरात भर में, कितना जरूरी है? जी, आप सबको सबसे पहले मैं वंदे मातरम कहती हूँ, नमस्कार। हेलो अमित जी, हेलो, आवाज आ रही है जी हमारी? जी हाँ हाँ जी, बोलिए ये आप। हाँ, जी, आ केरला रही है, आप स्टोरी जो बोलिए। मूवी, हाँ, केरला स्टोरी जो मूवी बनी है, ये तो ये समझ लीजिए कि केवल 10% सच्चाई दिखाई जा रही है जो आज हमारे देश और समाज में जिहादी षड्यंत्र है। मैं स्वयं लव जिहाद जैसे घटना के लिए बच्चियों को बचाने का कार्य हमारे संगठन द्वारा करती हूँ। मैं आपको बताऊं, 14 साल, 13 साल, 15 साल की लड़कियों का मेरे पास प्रमाण है, FIR की कॉपी है जो कोर्ट में चल रही है। इनको बहला फुसला के ले जाया जाता है, जिनसे मौलवी द्वारा निकाह कराया जाता है। इनको सरकारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से लेकर के जन्म प्रमाण पत्र में भी छेड़खानी करके इनको डुप्लीकेट नाबालिग से बालिग बताया जाता है। यह ऐसा षड्यंत्र है जिसमें एक समुदाय जो सर्वे भयंतु सुखने का विचार लेकर के पूरे विश्व में चल रहा है, उस समाज को तोड़ने के लिए, उनकी बच्चियों का जीवन नष्ट करने के लिए ये ऐसा षड्यंत्र पूरे विश्व में जिहादी कर रहे हैं। परंतु भारत में तो जो प्रेम जिहाद इतना बड़ा जड़ और इतना बड़ा विश्व हो गया है, अमित जी आपको मैं बताऊं, यदि इस पे केंद्र सरकार गंभीरता से विचार नहीं की तो जितनी बच्चियों का जीवन नर्क हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सबका उत्तरदायी यह प्रशासन होगा। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल कविता जी, ये बात सर्वविदित हो चुकी है कि जिस प्रकार से ये पूरा षड्यंत्र पूरे देश भर में चल रहा है और हर जगह यही बात सामने आती है कि जिस तरह से पूरी तरह से नियोजित तरीके से लड़कियों को टारगेट किया जाता है। लेकिन कई जगह पर आज भी इस मामले को लेकर के जो जागरूकता होनी चाहिए, जो खास करके हिंदू समाज की लड़कियों में, वो अभी भी बहुत कम दिख रही है। आज भी आसानी से वो लोग लड़कियों को शिकार बना लेते हैं। हम वंदना जी के पास वापस जाएंगे। वंदना जी, किस तरह का आप ये पूरा माहौल देख रहे हैं पूरे देश भर में? ये लव जिहाद को लेकर के लड़कियों को टारगेट किया जाता है और इस तरह से धर्म परिवर्तन कराना या जो विधि विधान से जो चीजें होनी चाहिए उसको बदलकर दूसरे धर्म के अंदर ले जाया जाता है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन इको साउंड है, आपका साउंड गूंज रहा है। आई होप अब आपको मेरी आवाज आ रही है। जी, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि साहित्य और सिनेमा ये दोनों समाज का आईना होते हैं और ये हमारा जो समाज है उसको ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारे समाज में लव जिहाद जैसी घटना जो है वो घटित हो रही है। ये केवल एक मूवी नहीं है, ये केवल एक फिल्म नहीं है, अपितु अगर आप केरला के पूर्व चीफ मिनिस्टर का बयान सुनेंगे या फिर आप केरला स्टेट फोर्स की बात सुनेंगे या फिर आप केरला हाई कोर्ट की बात सुनेंगे, उन्होंने जो अपना वर्डिक्ट, अपना जजमेंट 2009 में दिया है, उसमें उन्होंने लव जिहाद शब्द का जो है प्रयोग किया है और ये सत्य है इस समाज का, इस समाज में घटित हो रहा है। लेकिन कुछ मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते बहुत सारे लेफ्टिस्ट, बहुत सारे कम्युनिस्ट जो है इस चीज को जो है इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, परंतु ये घटना हो रही है। और मैं आपको बताऊं 1977 में अलीगढ़ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था, सिनी। ये एक स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी जो एक प्लान के तहत समाज में इस्लाम को फैलाती थी।
और इसी के तहत जो है पहली बार लव जिहाद जैसी 1995 के अंदर लव जिहाद को जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से जो है फैलाया गया है, जिसको जो है चलचित्र के माध्यम से यहाँ पर केरला स्टोरी में दिखाया गया। और मेरे ख्याल से ऐसी फिल्में जरूर बननी चाहिए। हमारा जो समाज है वहाँ की लड़कियों को इसकी समझ होनी चाहिए, जो बहुत आसानी से मुस्लिम लड़कों के जाल में फंस जाती हैं, और वो केवल इसलिए होता है क्योंकि उनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। और उसके पीछे भी एक बड़ा षड्यंत्र रहा है। जो मैकॉले एजुकेशन सिस्टम आया, उसने कहीं ना कहीं हमारी जो धार्मिक शिक्षा थी, आध्यात्मिक शिक्षा थी, उसका जो है उसको तहस नहस कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी के चलते आजकल के जो बच्चे हैं ये भी नहीं जानते कि भगवत गीता में अध्याय कितने हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे प्रमुख शास्त्र कौन से हैं। और इसी का फायदा इस्लाम और इस्लाम फैलाने वाले लोग और मुस्लिम समुदाय के लड़के उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी और हमारे समाज की भी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, जो हम अपने बच्चों को जो ज्ञान पहले से ही देना चाहिए था वो हम नहीं दे पाए हैं, और जिसका फायदा आज लोग उठा रहे हैं। कविता जी के पास हम चलते हैं फिर से। कविता जी, किस तरह का ये जो पूरा षड्यंत्र है, वो आप तो कई सालों से कार्य कर रही है इस तरह की जो घटनाएं होती है उसके अंदर, इसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो किस तरह के किस्से आपके सामने अब तक आए हैं जो कि आप बता सकते हैं टीवी पर? जी हाँ, अभी मैं आपको पिछले मंथ की बताऊं, महीने की घटना। लड़की 14 वर्ष की उम्र में लड़की को बहला फुसला के मुस्लिम युवक द्वारा ले जाया जाता है, और लड़की विधवा माँ की बच्ची है, जो बच्ची मतलब माँ एक अपना किसी तरीके से चाय की दुकान धंधे करके अपना जीवन व्यापन करती है। बच्ची को घर में बुला के मौलवी पूरे मुस्लिम युवक परिवार द्वारा विवाह किया जाता है। 3 से 4 बार उसको गर्भवती किया जाता है। जबरन उस बच्ची को गर्भ निरोधक दवाइयां खिला करके गर्भपात कराया जाता है। अंततः यह परिस्थिति, वह मुस्लिम युवक जो विवाह करता है वो जेल में रहता है, फिर भी बच्ची गर्भवती होती है, और फिर से उसके साथ प्रताड़ना शुरू होता है कि तुमको गर्भपात करना पड़ेगा। परंतु उस बच्ची ने जो पिछले गर्भपात में पीड़ा सही थी, उसके भय बस वो भाग के फिर से 5 वर्ष बाद अपने माँ के पास आती है जीवन बचाने के लिए, और वहां तक उसको हथियार लेके आके धमकी दिया जाता है मुस्लिमों द्वारा कि तुमको चलना पड़ेगा, नहीं तो माँ बेटी दोनों का जीवन समाप्त कर देंगे। तब जाके हिंदू संगठन से गुहार लगाया जाता है, जो आज लिंबायत पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है, न्यूज में भी दिखाया गया। ये सच्चाई घटना भी पिछले महीने की है। इसके पहले भी 2-3 महीने पहले भी 14 वर्ष की बच्ची को भगा के अजमेर शरीफ ले जाया गया, वहां भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। उस बच्ची को भी संगठन ने किसी तरीके से, पुलिस प्रशासन सूरत की बहुत अच्छी सहयोग इसमें करती है बच्चियों का जीवन बचाने में। बच्ची को सुरक्षित लाके उसके माँ बाप को सुपुर्द करके आरोपी को कोर्ट के सामने, जज के सामने प्रस्तुत किया है। उसके भी 2 साल पहले भी ऐसे 14 वर्ष की बच्ची का केस आया, लेकिन इसमें यह वो लोग बच्चियों का आधार कार्ड एफिडेविट द्वारा, वो भी जाली एफिडेविट बनाया जाता है जिसमें पेरेंट्स का कोई सिग्नेचर नहीं है, तो बच्ची के सिग्नेचर पे या बच्ची किसी को बहला फुसला के सिग्नेचर द्वारा आधार कार्ड पे नाम बदला जाता, आंगनबाड़ी से डुप्लीकेट कागज निकाला जाता है। यह सब कब तक चलेगा देश में? क्या प्रशासन को पता नहीं है कि क्या हो रहा है? एक तरफ यही मुस्लिम समुदाय जब खुद किसी आरोप या क्राइम में द्वारा फंसते हैं तो ये कोर्ट में गुहार लगाते हैं, काला कोट पहन के खड़े होते हैं कि मैं वकील हूँ, ये संविधान है, ये फला है, ये ढेका है। जब इनको किसी नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ संबंध बनाने होते हैं, विवाह करने होते हैं, तो इनके पास आ जाता है शरिया कानून, मौलवी आके निकाह करा देता है। तो ये स्पष्ट क्यों नहीं कहता यह समुदाय, जिहादी समुदाय, कि इसको शरिया कानून पे भारत में रहना है या भारत के संविधान पे रहना है? कब तक ये दोगलेपंथी विचारधारा हिंदू समाज की बच्चियों का जीवन नर्क करेंगी?
सही बात है, सही बात है। ऐसे कई किस्से आते रहते हैं, हर वक्त हम लोग देखते रहते हैं। हमारे माध्यम में भी हमने कई बार ऐसे किस्सों के बारे में खबरें दिखाई है। वंदना जी, क्या क्या होना चाहिए ऐसे किस्सों को रोकने के लिए, आने वाले समय के लिए जागृति के लिए क्या होना चाहिए? हाई सेकेंडरी जो अभ्यास है वहीं से हम समाज के अंदर जो धर्म का ज्ञान है और जिस तरह से ये जो किस्से हो रहे हैं उसके लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए अभ्यास क्रम से ही ये कार्य शुरू करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगली पीढ़ी में ये जो दूषण अभी फैला हुआ है उसको रोका जा सके और बच्चियां छोटी उम्र से ही जागरूक हो जाए और इन तरह के षड्यंत्र में ना फंसे। इस तरह का कोई उपाय होना चाहिए आपके हिसाब से? ये देखिए, एक बात तो है कि अपने धर्म का ज्ञान देना, और दूसरी बात है उनके धर्म की, या धर्म तो नहीं कहूंगी, उनके पंथ की खामियों को जानना। तो इससे पहले कि मैं अपने धर्म के विषय में बात करूं, मैं उनके पथ के विषय में या उनका जो विचारधारा है उसके विषय में बात करना चाहूंगी। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो आजकल समझती हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारे मित्र हैं। वो मित्र जो हैं घर में आ जाते हैं, जीवन में आ जाते हैं, और फिर उन बच्चों का पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर मैं हमारी अपनी क्या मत है या फिर फिल्म क्या कहती है इसके आधार पर बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं रिसर्चर हूं। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगी, और फैक्ट्स रखूंगी मैं आपको शाही बुखारी साहब की कुरान के, जो ये जिसको ये प्रमाण मानते हैं मुसलमान। और उससे पहले मैं हदीस से आपके सामने एक वर्स रखना चाहूंगी। बुक नंबर 8 का 3371 वर्स है। हदीस क्या है? हदीस इनके प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी है, और उसके अंदर ये बात क्लियरली लिखी गई है कि जिहाद करते समय, यानी कि अपने इस्लाम के परचम को लहराने के लिए जो तुम युद्ध करते हो, उसमें जो भी तुम औरतों को जीतते हो उनके साथ खूब इंटरकोर्स करो, खूब उनके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, लेकिन ध्यान रहे कि वो गर्भवती ना हो। कारण क्या है कि अगर वो गर्भवती होंगी तो बाकी लोग उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाएंगे और उनको बेचा नहीं जा सकता, बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। ऐसा जो है इसका डिस्क्रिप्शन जो है बुखारी ने लिखा है, जिसको प्रमाण मानते हैं मुसलमान। इसके बाद में कुरान का आपको जो है कुछ रेफरेंस देना चाहूंगी। कुरान 71 चैप्टर के 26 वर्ष के अंदर लिखा है कि काफिरों को तुम गुलाम बनाओ और इस कदर उनके मन में डर पैदा करो कि वो उनकी रूह जो है वो कांप जाए, जब तक वो अल्लाह को जो है एकमात्र ईश्वर ना मान ले और उनकी शरण में ना चले जाएं। कुरान 33 चैप्टर के 60वें वर्ष के अंदर लिखा है, काफिर जो है उसका सर कलम कर देना चाहिए जहां भी वो तुम्हारे को दिखे। साथ ही कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्ष नंबर 28 में कहा गया है, एक काफिर के साथ कभी भी दोस्ती मत करो। तो जो भी लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि मोहम्मद इब्राहिम या मोहम्मद कैफ ये लोग हमारे मित्र हैं, या अली खान या शाहरुख खान ये हमारे मित्र हैं, वो आपके मित्र नहीं है, वो केवल जिहादी है। एक बार और आप समझ लें, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट अथर्ववेद में आता है, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कुरान में नहीं आता है। कुरान में कौम का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक मुसलमान, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे दुबई का हो, उसके लिए राष्ट्र जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उसके लिए केवल कौम एग्जिस्ट करती है। अगर कोई पीड़ित मुसलमान दुबई में होगा, उनकी नजर में पीड़ित, तो पूरा समाज, मुस्लिम समाज वर्ल्ड ओवर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए कौम का कॉन्सेप्ट है। ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र का या नेशन का कॉन्सेप्ट कुरान के अंदर कहीं भी नहीं है। तो इन चीजों को भी जानना आवश्यक है, और साथ ही में अपने धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक मूवी आ रही है आदि पुरुष। आदि पुरुष के अंदर आखिरी जो सेंटेंस है जो रावण बोलता है कि तूने जो पाना था वो तू पा चुका है, लक्ष्मी को पाले नारायण हो जाएगा। ये पूरी तरह से आपकी रामायण जो है उसको छिन्न भिन्न करके दिखाया गया है। रावण ने कभी भी इस प्रकार की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की कि वो माता सीता से जो है वो विवाह करें। रावण ने ऐसा क्यों किया या उसका सीता का अपहरण क्यों हुआ,
इसके लिए आपको पूर्व जन्म में रावण के जाना आवश्यक है। और क्योंकि ये लोग इन चीजों को नहीं जानते, ये एक विकृत रूप से जो है समाज के सामने चीजों को रख रहे हैं और हमारे बच्चों को गलत ज्ञान दे रहे हैं। धीरे धीरे यही ज्ञान जो है वो इतिहास बन जाएगा और आपका जो एक्चुअल मैसेज है, जो एक्चुअल हिंदू धर्म है, वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत लंबे अरसे से हो रहा है कि जब बॉलीवुड की फिल्में बनती है, वंदना जी, बॉलीवुड की फिल्मों में ये बहुत लंबे अरसे से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि इस तरह की चीजों को एक इस तरह से टैक्टफुली दिखाया जाता है ताकि लोगों की जो मानसिकता है वो धीरे धीरे बदल जाए। और ये सारी चीजों का विरोध पहले भी बहुत सारी जगहों पर हो रहा है, लेकिन ये इतना मुकम्मल तरीके से नहीं हो रहा है कि जिसकी असर बॉलीवुड तक हुए और इसका जो बाइकॉट वगैरह जो भी चलता है वो अभी तक इतना मुकम्मल नहीं हो पाया है। मैं और एक चीज जानना चाहता हूं वंदना जी कि जिस तरह से जिस तरह से ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है, इसके अंदर विदेशियों देशों से फंडिंग आ रही है और पूरा सुनियोजित तरीके से ये षड्यंत्र चलाने के लिए लोगों को पैसा दिया जाता है। ये इसके बारे में क्या आपकी रिसर्च है और किस तरह की जानकारी आपके पास है? देखिए, इस्लाम के अंदर एक ज़कात का कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके यहाँ फॉर्म का कॉन्सेप्ट होता है। जब भी कोई पैसा जो है खर्चा किया जाता है, इनके यहाँ ज़कात का यानी 2.5% इन्हें ज़कात देना पड़ता है मुसलमान को। नमाज, रोजा और उसके बाद ये जो अपने मक्का मदीना जाते हैं, इसके साथ इनको ज़कात जो है इनके 5 पिलर्स में से एक पिलर है। तो ज़कात का केवल अर्थ ये नहीं होता कि गरीब की मदद करना, ये लोग गरीब की मदद करते हैं और साथ ही में इस्लाम का परचम भी लहराना चाहते हैं। तो इसलिए इनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक छोटे से छोटा रिक्शा वाला से लेकर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, फिल्म स्टार जिनकी आप लोग पूजा करते हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, सैफ अली खान हो या आमिर खान हो, ये सब 2.5% ज़कात देते हैं। और ये जो पैसा जो है यूज किया जाता है, ये इस्लाम के परचम को लहराने के लिए किया जाता है। ये जिहाद आपके और हमारे लिए अहिंसा हिंसा हो सकती है, वायलेंस हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये होली वॉर है। होली वॉर अगेंस्ट नॉन बिलीवर्स, होली वॉर अगेंस्ट काफिर। तो उनका एक ही उद्देश्य है कि इस पूरे जहान में केवल इस्लाम हो, क्योंकि उनका ऐसा मानना है इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन। और कुरान में आपको जगह जगह ऐसे वर्सेस मिल जाएंगे जहां पर उनको हिदायत दी गई है कि अगर तुम एक काफिर को मारते हो, उसको खत्म करते हो, उसका कत्ल करते हो, कत्ल शब्द की उत्पत्ति भी जो है वो कुरान से ही होती है, तो ये तुम जो है दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हो, तुम इस्लाम के फेवर में काम कर रहे हो और इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हो। तो ये फंडिंग जो है ये उसी प्रकार से है जैसे आप चंदा इकट्ठा करके लोगों की भलाई करते हैं, पशु पक्षियों की भलाई करते हैं, गरीबों की भलाई करते हैं, लड़कियों की शादी करते हैं, उसी तरह से ये ज़कात जो है इसको इकट्ठा करके इंटरनेशनल वायलेंस जिसे हम आज के समय में कहते हैं, और ये लोग अपनी भाषा में उसको जो है जिहाद कहते हैं, वो ये करते हैं। और मेरे ख्याल से जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने एक बात कही थी कि दुनिया में जितने भी इवल्स हैं, चाहे वो अविद्या हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो इस तरह का वायलेंस हो, केवल विद्या से ही आप उसको खत्म कर सकते हैं। बाइकॉट वगैरह जो है वो थोड़े समय काम करेगा, परंतु लंबे समय तक काम नहीं करेगा। आवश्यकता है भारत की चेतना को दोबारा जागृत करने की, पुनर्जागरण की आवश्यकता है इस समाज को, और उसके लिए आवश्यकता है दोबारा से वेदों की तरफ अपना रुझान बढ़ाने की, वेदों की तरफ जाने की, वेदों की ऋचाओं को दोबारा करने की। बिल्कुल 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 वंदना जी, और ये हमारे वेद और अपने उपनिषद और अपने जो ग्रंथ है उसी के अंदर ये सारा ज्ञान हमें मिलता है, और जो ज्ञान की जरूरत हम पूरे समाज को आज बहुत सबसे ज्यादा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, हमारे साथ जुड़े, ये चर्चा में पार्टिसिपेट किया और ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही कविताबेन दुबे
जो वीएचपी के नेता हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ जुड़ के ये पूरे चर्चा के अंदर उन्होंने हमारा दर्शकों का मार्गदर्शन किया। तो हमने देखा कि जिस तरह से ये द केरला स्टोरी के ऊपर विवाद पूरे देश में चल रहा है, लेकिन गुजरात सहित कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इसको फुल सपोर्ट मिल रहा है और आज ये फिल्म 100 करोड़ से पार हो चुकी है कमाई को लेकर के। कुछ ही दिनों में शायद वो 200 करोड़ के भी पार हो जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसी मामले को लेकर के सुनवाई है, जहां बंगाल और तमिलनाडु जैसे स्टेट के अंदर इसको प्रतिबंधित किया है, उस मामले को लेकर के आज सुनवाई है। तो ये आज का हमारी पेशकश थी। हम कल दूसरे विषय के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत।